Hello friends, in this video we are going to discuss the solution of numerical problem number 21 from the chapter of motion in a straight line from the book Newton ISC Physics. Students, the question says a balloon is rising vertically upwards with a velocity of 10 meter per second. So here you can see there is a balloon which is rising upwards with a speed of 10 meter per second and is presently at a distance of 45 meters. So this distance from the ground happens to be 45 meters. Now at this distance a parachutist bails out. So you can see there is a parachutist which is about to bail out, and once he bails out from the balloon, he opens his parachute only after 3 seconds. So you can notice the question says he opens his parachutes after 3 seconds. So till 3 seconds he remains under the effect of gravity. That means he is falling freely under gravity for the first 3 seconds of the motion. And once he opens the parachutes, then he deaccelerates with a constant rate of 5 meter per second squared. Now, then we have got a series of questions that would be put forward for us for what is the height above the ground when he opens the parachutes, how far is he from the balloon at that instant, with what velocity does he strikes the ground, with what time does he takes in striking the ground after his exit from the balloons. So there are several number of numerical problems that are going to follow up in the consequence of this particular numerical. Now before I start discussing this numerical problem, I would like you all to understand few of the basics, and these basics can you can think as they are the learning objective of this numerical problems. Then you can also use them for future for solving numerous number of numerical problems in future also. Now let's see what are the learning objectives that you need to understand, you need to carry back from this numerical problem. Now the first learning objective is that you should be aware of different इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वो उससे तो आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए. पहला तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या बच्चा ये डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस को जानता है कि नहीं जानता है. हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है. दूसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ना अब यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को क्लास 11th-12th में इस बात को समझना कि ये जितनी भी इक्वेशन यहाँ पे मेंशन है, इसमें v जो है वो फाइनल वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने की हैबिट बना लेना, ताकि आप गलती से भी वेलोसिटी कहें तो, लेकिन गलती से भी इस वेलोसिटी का सेंस ऑफ डायरेक्शन ना भूलें. ठीक है. फिर देखो ये वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं हमेशा अपने बच्चों को और सबको यही सिखाता हूँ कि इसको आप डॉट प्रोडक्ट की तरह से लिखने की हैबिट डाल लीजिए. दैट विल मेक द लाइफ ईजियर. ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये आपको अब क्लास 11th में अच्छे से यूज़ करना और इसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए. जिन्होंने इसकी क्लास अटेंड करी हुई होगी उसको तो ज़रूर मालूम होगा. तीसरा इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बच्चों, तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वेक्टर फॉर्म में. ये तीनों आपको आने चाहिए. अगर आते हैं वेल एंड गुड है, आप इसको आगे यूज करेंगे. ठीक है. तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का तो यही है. दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इस न्यूमेरिकल से एसोसिएटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन. मैंने नंबर ऑफ बुक्स में इस सॉल्यूशन को जब भी रेफर किया, देखा, या किसी बच्चे से कभी डिस्कशन हुआ, तो ये बच्चे या वो बुक्स इस बात को भूल जाती हैं कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, वो है इनर्शिया ऑफ मोशन का. यानी कि अगर कोई मूविंग व्हीकल से, मूविंग प्लेटफॉर्म से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है
तो उस ऑब्जेक्ट के पास वही वेलोसिटी होती है। जब मैं कह रहा हूं वेलोसिटी तो आप ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं उसकी स्पीड और उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन वही होता है जो उस मूविंग व्हीकल का है। ठीक है, मैं इसके ऊपर इलस्ट्रेट करूंगा जब मैं इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर्ली, मतलब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चालू करूंगा। तो ध्यान, लेकिन ये इस क्वेश्चन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि दैट यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड कॉम्प्रीहेंड दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरी चीज बच्चों, इस न्यूमेरिकल का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो आपके साथ सेंस ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेंस। कौन से डायरेक्शन सेंस को हम लोग फॉलो करते हैं बच्चों? हम लोग कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन का डायरेक्शन सेंस फॉलो करते हैं, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। यानी ऊपर की तरफ जब कोई भी चीज जाती है तो उसको जे कैप से लिखेंगे, कोई चीज जब नीचे की तरफ आएगी तो उसको माइनस जे कैप से लिखेंगे, कोई चीज जो राइट की तरफ जाएगी उसको आई कैप से, जो कोई चीज लेफ्ट की तरफ जाएगी बच्चों उसको माइनस आई कैप से लिखेंगे। तो ये जो डायरेक्शन सेंस है, इस डायरेक्शन सेंस की जानकारी आपके पास होनी बड़ी जरूरी है। अगर आप इस डायरेक्शन सेंस के बिना आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली यू विल फाइंड योरसेल्फ स्टक इन अ न्यूमेरिकल in a awkward manner and you will not be able to solve that particular numerical. So these three things are major learning objectives for this particular numerical. So now let's refer to this numerical problem. What is happening in this numerical problem? You can see at a distance of 45 meter the balloon is rising up, a parachutist bails out. Now the moment at this point the parachutist bailed out, he was moving up, isn't it? मैं फिर से अगर उस वीडियो को रिपीट करूं तो आप देखें ना, जैसे ही पैराशूटिस्ट बेल आउट करता है वो नीचे नहीं गिरना चालू करता है बच्चों, वो पैराशूटिस्ट बैलून के साथ साथ थोड़ी देर तक ऊपर की तरफ जाता है। और जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो क्यों जाता है, उसका आंसर इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में छुपा हुआ है, जो कहता है कि due to the inertia of motion, the object, the body continues to be either in the state of rest or in the state of motion. In this case, it is in the state of motion. It's not in the state of rest. He is bailing out from the balloon, so he continues to move up with the balloon for a few seconds. ठीक है? And then the gravity starts. Then after that, his downward journey towards the earth starts. So that is the first concept that you should take care about. ठीक है? तो बच्चों जिस समय पैराशूटिस्ट बेल आउट हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी, नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है he continues to be in the state of motion, तो उसके पास पैराशूटिस्ट की जो वेलोसिटी है बच्चों, वो पैराशूटिस्ट की वेलोसिटी 10 जे कैप है। क्यों? क्योंकि वो बलून से ड्रॉप आउट हुआ है, तो उस समय उसने जो वेलोसिटी पोजेस करी हुई है, वो वेलोसिटी जो है पैराशूटिस्ट की वो वही होगी जो बलून की होगी। तो ये पैराशूटिस्ट है, ये बेल आउट करता है, ही पोजेसेस द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द balloon, that means both in magnitude and sense of direction. That is the first important learning outcome of this question. Is that clear? So we now know the initial velocity of the parachutist. Now he is going to open the parachute only after 3 seconds. So let's try to find out where exactly the parachutist will be after 3 seconds and what will be his velocity exactly after 3 seconds. Okay, so after 3 seconds, so I'm trying to analyze the motion after 3 seconds. I'm trying to analyze the motion of parachutist. Okay बच्चों, तो पैराशूटिस्ट का मोशन हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कितनी देर के बाद? 3 सेकेंड्स के बाद। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैराशूटिस्ट? तो जो इनिशियल वेलोसिटी है पैराशूटिस्ट की बच्चों, वो है 10 जे कैप, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको मालूम हो कि क्यों है ये, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और प्लीज टेक केयर अबाउट दिस इन
कि ये कहाँ से 10 जे कैप मैंने लिखा। ये ऐसे नहीं है कि मैंने 10 जे कैप ऐसे लिख दिया, इसके पीछे फिजिक्स का लॉ रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वी आर लुकिंग फॉर द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t वेक्टर। बच्चों जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ 3 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। तो v वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैराशूटिस्ट, दैट इज 10 जे कैप। और इस समय पैराशूटिस्ट के ऊपर बच्चों कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? अभी तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी कर रहा है ना, अभी तो उसका पैराशूट ओपन नहीं हुआ। तो इस समय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है? वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड, इसलिए मैंने माइनस जे कैप का लगाया डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो जी 10 माइनस जे कैप, और टाइम बच्चों कितना है, कितने सेकंड्स तक का मोशन? आफ्टर 3 सेकंड्स की उसकी कहानी पढ़ा हूं, तो 3 सेकंड्स में उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली, ये हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो v इज इक्वल्स टू 10 माइनस 30 जे कैप, ठीक है। तो ये सॉल्व होके आया v इज इक्वल्स टू माइनस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और सिंपली v वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 माइनस जे कैप। तो बच्चों आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन जो उसके पास पैराशूटिस्ट के पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 माइनस जे कैप। तो एक बार फिर से हम लोग मोशन को रिव्यू करते हैं। ये यहाँ पे बेल आउट करता है, इस समय डिस्टेंस कितना है? 45 मीटर्स का है, ठीक है बच्चों। किसका? बलून का, और एज वेल एज पैराशूटिस्ट का, ग्राउंड से 45 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये ग्राउंड है और यहाँ से पैराशूटिस्ट और बलून दोनों 45 मीटर्स पे हैं, और ये पैराशूटिस्ट इस इंस्टेंट पे बेल आउट करता है। बलून ऊपर की तरफ जा रहा होता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऊपर उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 जे कैप है। और अब ये यहां से गया, पैराशूटिस्ट एयर में राइज करता है, मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, फिर ये फॉल बैक कर जाता है। और इस पॉइंट पर अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पर ये पैराशूटिस्ट अपने बलून को, सॉरी अपने पैराशूट को ओपन कर रहा था। यानी इतनी देर का जो मोशन है बच्चों वो 3 सेकेंड्स को बीत जाने के बाद का ये मोशन है। तो इस समय पर जब पैराशूटिस्ट ओपन कर रहा है अपने पैराशूट को, तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो बच्चों कितनी है? वो वेलोसिटी है माइनस 20 जे कैप। तो इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों पैराशूटिस्ट की? अब ये 20 माइनस जे कैप है, ठीक है। और पैराशूटिस्ट अब इस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है 20 माइनस जे कैप से, ठीक है। तो बच्चों अब आफ्टर 3 सेकेंड्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसको मैंने ब्लू कलर के एरो से बना दिया है। तो इसकी जो वेलोसिटी है इस समय आफ्टर 3 सेकेंड, जो उसकी वेलोसिटी है वो 20 माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, ये आफ्टर 3 सेकेंड्स के बाद का अब उसका कोर्स ऑफ एक्शन है, वो पाथ है जिसके अबाउट अब वो मूव करेगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर 3 seconds parachutist has a velocity of 20 minus j cap meter per second। ये मुझे पता चल गया। अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, और जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो मान लो यहां पर, तो अब जो भी पैराशूट है उसकी वजह से जो रिटार्डेशन लग रहा है, अब बच्चों जब पैराशूट की वजह से जो रिटार्डेशन लगेगा, आपको मालूम है धरती माता हमेशा नीचे की तरफ एक्सेलरेट करा रही होती है, इसलिए जो भी रिटार्डेशन लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब आफ्टर 3 सेकेंड्स जो रिटार्डेशन लग रहा है वो रिटार्डेशन कितने मीटर पर कितने का लग रहा है? वो क्वेश्चन कह रहा है डी एक्सेलरेशन लग रहा है उसके ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उसके ऊपर डी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन लग रहा है। तो ये रिटार्डेशन है आफ्टर 3 सेकेंड्स, कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो बच्चों आफ्टर 3 सेकेंड्स इसके बाद के जो मोशन है, आफ्टर 3 सेकेंड्स के बाद का जो मोशन है, उसमें पैराशूट की वजह से उसके ऊपर एक रिटार्डेशन लग रहा है। कितने का लग रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर की तरफ।
और ऊपर की तरफ लगने की वजह से मैंने इसको सेंस ऑफ डायरेक्शन जे कैप का दे दिया। ठीक है, अब ड्यूरिंग 3 सेकेंड्स उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। चलिए उस बात को निकालते हैं। तो ड्यूरिंग 3 सेकेंड्स जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, तो डिस्टेंस ट्रैवल एस वेक्टर इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या ये कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ड्यूरिंग 3 सेकेंड्स उसने कितना डिस्प्लेसमेंट सफर किया है। बच्चों ये एस जो इस इक्वेशन में होता, मैं इसके बारे में क्लैरिटी और दे दूं आप लोगों को। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द पैराशूटिस्ट। डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो बच्चों, पैराशूटिस्ट यहां से चलना चालू किया, जो ब्लू कलर के मैं डॉट्स लगा रहा हूं, ये एक्चुअल पाथ टेकन बाय द पैराशूटिस्ट है। ठीक है ना, ये एक्चुअल पाथ टेकन बाय द पैराशूटिस्ट है। लेकिन अगर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली वो यहां पे था, आफ्टर 3 सेकेंड्स पैराशूटिस्ट ये आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, ड्यूरिंग 3 सेकेंड्स में उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 जे कैप इनटू टाइम 3 सेकेंड्स हाफ। पहले 3 सेकेंड्स में तो आपके पास सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, 10 माइनस जे कैप, और टी स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर, 2 5 10। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे बच्चों, ये आ रहा 30 जे कैप, और ये हो गया माइनस, ये माइनस साइन यहां आया, 3 का स्क्वायर 9 5 45 जे कैप। सॉल्विंग इट आउट तो -15 मीटर जे कैप, और सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट आया बच्चों कितना आया, 15 मीटर का माइनस जे कैप। तो ये कितने मीटर डिस्प्लेस हुआ है पैराशूटिस्ट, ये पैराशूटिस्ट का जो डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट आया, ये कितना आया, 15 मीटर्स का आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से ऊपर से ये नीचे की तरफ कितना आया, 15 मीटर्स का आया। तो ग्राउंड से बच्चों, ग्राउंड से इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो भाई 15 मीटर ऊपर से नीचे आया, ग्राउंड से ये पूरी दूरी 45 मीटर की थी, तो ये कुल कितना डिस्टेंस बच जाता, 30 मीटर का बच जाता। तो बच्चों इस तरह से आपके पास पहला वो आंसर निकलता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैराशूटिस्ट above the ground when he opens the parachute, and that height comes out to be 30 meters। तो बच्चों ये हाइट 30 मीटर्स आपके सामने निकल के आ गई। अच्छा, अब साथ ही साथ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछ रहा कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द बलून एट दिस इंस्टेंट। तो बच्चों बलून इतनी दूरी में, इतने देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने अब तक नोट कर लिया होगा। सो ड्यूरिंग 3 सेकेंड्स बलून कहां पहुंचा बच्चों, तो बलून ने कुल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड। अब देखो बच्चों यहां पे बलून के ऊपर, या इस क्वेश्चन में बलून के बारे में एक बात नहीं मेंशन की गई है कि बलून की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है या कुछ कम होने लग जाती है। मैं अभी ये एज्यूम करके चलता हूं कि बलून कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये मेरा अजम्पशन है कि किताब में कहा नहीं है, कहना चाहिए था। अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है न्यूटन फिजिक्स की कि बहुत क्लैरिटी से क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चंस हैं लेकिन क्लैरिटी से नहीं लिखे गए हैं। एक छोटा सा वर्ड उनको ऐड करना है कि बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अजम्पशन क्या है कि बलून राइजेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना, ये मेरा अजम्पशन है। उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और कितना कांस्टेंट वेलोसिटी है बच्चों, वो वेलोसिटी कितनी दे रखी थी बलून की, तो बलून की कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो वीबी इज 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस 3 सेकेंड में
बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मैं फिर से s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बलून के रेफरेंस में लगा रहा हूं, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। भाई बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है बच्चों, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 है। s इज इक्वल्स टू s फॉर बलून इज इक्वल्स टू किस वेलोसिटी से जा रहा है 10 जे कैप और टाइम कितना है 3, तो बलून ने कुल कितना डिस्प्लेसमेंट सफर कर लिया होगा बच्चों, वो है 30 जे कैप मीटर्स का। तो बच्चों बलून 3 सेकंड में कुछ 30 मीटर्स का ये ऐसे यहां पे मैं मान लेता हूं इस जगह पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बलून है आफ्टर 3 सेकंड्स, ठीक है ना। तो 3 सेकंड लैप्स होने के बाद ये यहां से, तो ये यहां से बलून चला था, तो बलून यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना सफर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बलून का, तो बच्चों ये बलून का डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है, कितने मीटर का आ रहा है बच्चों, ये 30 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा कि हाउ फार इज द पैराशूटिस्ट। नाउ 3 सेकंड्स के बाद पैराशूटिस्ट यहां पे था, याद है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 15 मीटर की, और यहां से पैराशूटिस्ट सॉरी बलून कुल 30 मीटर ऊपर चला गया है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो पैराशूटिस्ट और बलून के बीच में है 30 प्लस 15, तो डिस्टेंस बिटवीन पैराशूटिस्ट एंड बलून इक्वल्स टू 45 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये सेकेंड पार्ट है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द बलून एट दिस इंस्टेंट। सो आई बिलीव ये पहले 2 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। लेट मी जस्ट क्लियर द क्लटर, बहुत गंदगी हो गई है यहाँ पर, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और फिर मैं इसके आगे का पार्ट लेता हूँ, टेक करता हूँ, ठीक है। सो बच्चों नाउ बलून आफ्टर 3 सेकेंड्स यहाँ पे है, पैराशूटिस्ट कुछ इस पॉइंट पर है, इतना डिस्टेंस 30 मीटर्स था जो अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी, और ये डिस्टेंस जो था वो 15 मीटर्स था, ठीक है। अब ये सारी चीजें निकल के और उनके आंसर्स आपके पहला पार्ट और सेकंड पार्ट का निकल के आ गया। आप देख रहे होंगे अब तक इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन का वेक्टर फॉर्म यूजफुल है, इस बात की जानकारी का होना इनर्शिया ऑफ मोशन का रोल क्या है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस, दोनों ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में अभी तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरा ये सोल्यूशन, मेरा ये वर्क आपको अच्छा लगता है, आपके एक्सप्लेनेशन को इनरिच करता है, आपको एक नया इंसाइट, नया डायमेंशन देता है चीज़ों को समझने के लिए, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस मेहनत को अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके इसको अपने कुलीग्स, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट। Now the third part of the question says with what velocity does he strikes, मतलब अब किस वेलोसिटी से जब ये पैराशूटिस्ट लैंड करने जा रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो बच्चों ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, एक बात, और कितना ये टाइम लेगा, what time does he takes in striking the ground after his exit। तो बच्चों ये कितनी देर के बाद ये स्ट्राइक करने वाला है जमीन पे, वो टाइम मुझे चाहिए, और दूसरी चीज है मुझे ये मालूम होना चाहिए किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा। ना बच्चों पैराशूट इस समय कहां पर है, ग्राउंड से 30 मीटर्स की हाइट पे है ना, तो अब ये 30 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से, उसको 30 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, उसकी इस समय जो वेलोसिटी है वो कितनी है 20 माइनस जे कैप, और उसके ऊपर जो रिटार्डेशन लग रहा है बच्चों वो कितने का लग रहा है 5 जे कैप का लग रहा है। तो बच्चों now the parachutist moves with a velocity of 20 minus j cap. He has to cover a distance of
30 meter in order to land on the ground, और 30 मीटर डिस्टेंस 30 मीटर का है in order to land onto the ground. रादर डिस्प्लेसमेंट कुल कितना हो जाएगा बेटा? मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट को लाना चाहता हूं क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है. तो डिस्प्लेसमेंट कितने का होना है बच्चों? 30 माइनस जे कैप का पैराशूटिस्ट को. एंड ही इज एक्सपीरियंसिंग क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? एंड ही एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डेशन ऑफ 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास अब अवेलेबल है और हम इस इंफो के साथ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के लिए प्रोसीड ऑन करेंगे. So let's start with the third and the fourth part. So first of all I need to find out the velocity with he is about to strike the ground. इक्वेशन कौन सी लेने जा रहा हूं मैं? v square is equals to u square plus 2as. इसका मैं इस्तेमाल करूंगा. What is the velocity? Yeah, that's what we are looking forward for. V square we are looking forward for. That's what we are going to find it out. What is the velocity with which he starts his journey after 3 seconds? तो उसकी जो velocity है जिससे वो start कर रहा है नीचे आने का प्रोसेस, पैराशूट को ओपन होने से पहले जो velocity थी, अब वो उसकी इनिशियल velocity 20 और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2. एक्सेलरेशन अब कितना लग रहा है बच्चों? ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है यानी जो रिटार्डेशन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो 5 जे कैप है. और जो डिस्प्लेसमेंट होने जा रहा है पैराशूटिस्ट का वो नीचे की तरफ होने जा रहा है, तो 30 माइनस जे कैप है. तुम्हें याद होगा मैंने इस इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म लिखा था v डॉट वी इज इक्वल्स टू u डॉट यू प्लस 2a डॉट एस. j डॉट जे हमेशा 1 होता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे. 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 5 2 10 और 30 इंटू 10 इज 300 j डॉट माइनस जे. ठीक है, और ये मुझे क्या दे देगा बच्चों? ये दे देगा -1. तो ये हो जाएगा 400 माइनस 300. ठीक है, j डॉट जे इज ऑलवेज 1, ध्यान रखिएगा. तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 100 मीटर पर सेकेंड. और v के जो रूट्स निकालोगे तो प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आएगा. अब बच्चों इसमें से कौन सा रूट हमारे काम का है? देखिए प्लस 10 मीटर पर सेकेंड से वो ऊपर हवा में नहीं जा रहा होगा, तो इसलिए जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? -10 मीटर पर सेकेंड जे कैप. मैंने नेगेटिव रूट क्यों लिया? क्योंकि after he reaches onto the ground, he is going to come down with certain velocity, and that velocity has to be that has to be directed in the downward direction. That's why this negative sign has been taken, the negative root has been taken. ठीक है बच्चों, तो ये I expect कि ये solution आपके समझ में आ गया होगा. अब चलिए लास्ट पार्ट पर चलते हैं. What time does he take in striking the ground? तो उसके लिए मैं s is equals to ut plus half at square का फॉर्म यूज करूंगा. टाइम मुझे निकालना है, या इसकी भी जरूरत नहीं, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने आप को बचाता हूं और मैं ले लेता हूं आपके लिए v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी विथ व्हिच ही स्ट्रक्स द ग्राउंड? दैट इज -10 j कैप. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? दैट इज 20 माइनस j कैप. प्लस एक्सेलरेशन कितना है? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है वो रिटार्डेशन के फॉर्म में है और वो ऊपर की तरफ लग रहा है 5 जे कैप का, तो ये हो गया 5 जे कैप इंटू टी. सो -10 जे कैप और 20 इधर से इसको ट्रांसपोज करता हूं तो इधर आता है 20 जे कैप -10 जे कैप प्लस इक्वल्स टू 5 j cap t cap, and 20 minus 10 is 10 j cap is equals to 5 j cap t. Therefore j cancels out, so t comes out to be 2 seconds. That means he takes or he covers this much journey in 2 seconds interval. Okay,
तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइम डज ही टेक्स इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आफ्टर हिज एग्जिट फ्रॉम द बलून। तो बच्चों बलून से उसको निकले हुए ऑलरेडी 3 सेकेंड्स बीत गए थे और 2 सेकेंड्स में उसने ये जर्नी कंप्लीट करी थी, तो टोटल टाइम इलैप्स्ड हो गया 3 seconds plus 2 seconds and that comes out to be 5 seconds and that what the answer is. वो थोड़ा हाइड हो गया, so that's the answer is, you can look into the book, that answer will be 5 seconds. Okay, so I hope this discussion of this particular numerical problem must give you a good insight about using the kinematics equation in the vector form and how to use the sense of direction, how to use inertia of motion. So please take care of this particular numerical problem. एक चीज और मैं ऐड अपॉन करूंगा बच्चों कि इसमें आप अपने तरफ से एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जरूर बनाइएगा। पैराशूटिस्ट का भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ तैयार करिएगा, इंटायर मोशन का, और साथ ही साथ बलून का भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा पार्ट आपके लिए ऐड अपॉन कर देता हूं, तो ध्यान से इसको बनाइएगा जरूर, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। दैट विल गिव यू अनदर इंसाइट अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बच्चों। तो आपको क्या बनाना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द पैराशूटिस्ट एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बलून। ओके, थैंक यू वेरी मच।